Hi everyone. So welcome again. This is the second session of quantitative ability. In the first one, we discussed about the syllabus, level of difficulty, and did some questions also, which can be solved using logic, basic common sense. Correct. Today also, before starting the actual topics, we will do actual CAT questions for which you do not require any concepts, right? I'm not saying the questions are easy, okay? The questions are good, okay, but can be solved using basic common sense or logic. All right. So this is my brief introduction for Lena School, right? Now let's start with the first question. So for every question, there is a thumb rule that pause the video, try this out, and come back again and see the solutions. Okay. डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं ओके प्रैक्टिस करने के लिए पहले ट्राई करोगे देन ओनली इट विल बेनिफिट यू ओके स्पून फीडिंग नहीं चाहिए राइट और गलती करोगे तो व्हेन यू सी द सॉल्यूशन एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एरर you have done so that actually helps you in cracking questions okay in the journey of cat okay चलिए स्टार्ट करते हैं let's solve this question. Three consecutive positive integers are raised to the first, second, and third powers respectively, and then added. The sum so obtained is a perfect square whose square root is equal to the total of the three original integers. Which of the following best describes the minimum, say m, of these three integers? Alright, so basically there are three numbers. Alright, consecutive positive integers, right? So if I assume three consecutive integers, I can assume it's as a minus 1, a and a plus 1, correct? The first one raised to the power 1. So a minus 1 raised to the power 1 plus second raised to the power 2 and third raised to the power 3. Now sum so obtained is a perfect square, and perfect square of what? Whose square root is equal to the total of the three original integers. That means इन तीनों का total करेंगे तो 3a आएगा. So this sum should be 3a whole square. That is why sum is equal to a number जिसका square root 3a है. 3a is nothing but sum of the original numbers. Correct. Now you will open the brackets and it will give you a cubic equation and you will try to solve the question, right? This is one approach. But again, like we did the last in the last video, the second question, right? Using the options. Okay. So I mean, this is not needed. What we can do is we can check the options. One more thing. Uh, Even if you do the cube of this number, right? Still, the summation is a square of a number which is nothing but the sum of the three numbers. So point is, the numbers cannot be very big. Understand this logic, right? Suppose the numbers are 7, 8, 9. So when you do 9 cube, right, it's 729. Although the sum of these three numbers is only 24. So if one of the numbers is 729, their sum cannot be equal to 24 square, right? Are you getting the logic? नंबर बड़ा नहीं हो सकता है करेक्ट दोनों लैंग्वेज में लेट्स टॉक अबाउट बोथ राइट सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप थ्री नंबर्स लेते 7, 8, 9 उनका सम करके 24 आता उसका स्क्वायर होता 24 का स्क्वायर जबकि थर्ड नंबर का क्यूब ही 729 है तो इन तीनों का जो सम करोगे आप यूजिंग दिस लॉजिक वो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता तो नंबर छोटे हो सकते हैं मतलब 2, 3, 4, 5 से ऊपर शायद ही जाएगा है ना 6 का क्यूब भी 216 होता है राइट और जबकि 4, 5, 6 भी अगर आप लेते 4, 5, 6 इफ यू हैव टेकन तो 15 का स्क्वायर 225 बनता जबकि ये अकेला 216 है और इसका भी आप स्क्वायर करोगे अभी तो क्लियर चलिए सो लेट्स ट्राई टू टेक स्मॉलर नंबर्स राइट इसको हटा देते हैं
लेट्स से 1 2 3 लेता हूँ। सो 1 पावर 1 plus 2 square plus 3 cube, that gives you 32. It is not a perfect square, so वैसे ही ruled out है ये। 2 3 4, 2 to the power 1 2 plus 3 square 9 plus 4 cube 64, that gives you 75. Again not a perfect square. 3 4 5, 3 to the power 1 3 plus 4 square 16 plus 5 cube is 125, that gives you 144, which is nothing but 12 square, and 12 is nothing but summation of 3 4 5. So this satisfied my condition. So the numbers are 3 4 5. Which of the following best describes the minimum of these three integers? So minimum is 3. So m is equal to 3, and now 3 is in which range? The first one. Got it? First one clear? चलिए सेकंड करते हैं। Consider the set S is equal to 2 3 4 till 2n plus 1 where n is a positive integer larger than 2007. ठीक है, ये 2007 का ही क्वेश्चन है, इसलिए वो नंबर यूज किया गया है। कैट जनरली ऐसा करता था पहले, राइट? जिस ईयर का कैट है उस पर्टिकुलर ईयर का नंबर कहीं ना कहीं दे देता था। Define x as the average of odd integers in S and y as the average of even integers in S. What is the value of x minus y? अभी देखो, अगर मुझे लॉजिक नहीं भी पता है एवरेज का, तो भी मैं इसको कर सकता हूँ। कैसे? आई मीन व्हेन यू नो द लॉजिक तो कर ही पाओगे, बट उसके बिना भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉइंट देखो ये है यहाँ पर कि n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स, 2 ऑप्शन n की वैल्यूज में और 3 ऑप्शंस आर देयर जिसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। So what if I simply take any value of n? मान लो n 1 है. If n is 1, then s is nothing but 2 and 3, because when you put n equal to 1 here, it will give you 3 only. So in that case, x क्या हो जाएगा आपका? x is the average of odd integer. एक ही नंबर है odd, उसका एवरेज वो खुद ही आएगा. And y is the average of even, which is 2. So x minus 5 कितना आया? x minus 5 आपका वापस आ गया 1. So if you put n equal to 1, आपका आंसर 1 आना चाहिए, है ना? ये 1 दे रहा है ऑलरेडी, इसमें 1 करके 1/2 आएगा, रूल्ड आउट। इसमें 1 करेंगे तो 1 आएगा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये आउट है, ये आउट है, 2 ऑप्शन बचे। लेट्स से n इक्वल टू 2, देन s विल बी 2 3 4 5। सो x कितना आएगा आपके पास? एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर, 3 और 5 का एवरेज हो गया 4, एंड y इज एवरेज ऑफ इवन इंटीजर, 2 और 3 का एवरेज हो जाएगा, सो 2 और 4 का एवरेज हो जाएगा 3। अगेन x माइनस 5 आपका 1 आ रहा है, सो 2 डालने पर भी 1 आना चाहिए। अब ऑप्शन 3 अगर आप देखोगे, इसमें 2 डालोगे, इट विल नॉट गिव यू 1, तो ये भी आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली फर्स्ट ऑप्शन। इट मीन्स वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ n, आंसर 1 ही आएगा। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आपको एवरेज का लॉजिक क्लियर है, राइट, तो आप एक बात समझो कि इफ यू आर टेकिंग x क्या है आपका, ऑड इंटीजर्स है ना, तो ऑड कौन से बनेंगे? 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और y क्या बनेगा? 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, राइट। अब आप देखो ये सारे नंबर यहाँ से आने में -1 हो गए, तो इफ एवरी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1, तो एवरेज भी तो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से आने में -1 हो जाएगा। तो मतलब x माइनस वाई 1 ही होगा, और कुछ आंसर ही नहीं है। ये लॉजिक की बात हो गई। क्लियर है? चलिए, 2 क्वेश्चंस वी डिड, मूविंग टू थर्ड। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस आउट। दिस इज अगेन एवरेज क्वेश्चन, और एवरेज निकालना सबको आता है, राइट? तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। 10 years ago, the ages of the numbers of a joint family of 8 people added up to 231 years. 10 साल पहले 8 लोगों का एवरेज, टोटल जो है वो 231 ईयर्स है।
ठीक है। 3 years later, one member died at the age of 60 years and a child was born. Another 3 years later, one more member died again at 60 and a child was born during the same year. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीपल 8 ही रहते हैं, राइट। जैसे ही एक की डेथ होती है, एक पैदा हो जाता है, नंबर ऑफ सोल्स भी सेम रहती हैं। उसी की सोल उसमें आ जाती होगी। ठीक है, फिर क्या पूछा है? द करंट एज ऑफ दिस 8 मेंबर इज क्लोजेस्ट टू एवरेज ऑफ। ठीक है, एवरेज एज पूछा है। देखो 10 साल पहले, 10 years अगो, टोटल था 231। दो तरीके से करेंगे उसको, ठीक है ना। उसके 3 साल के बाद क्या हुआ? 3 years में इन 8 पीपल की जो एज है वो सबकी 3 years बढ़ जाएगी। सो +24 हो जाना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन एक की डेथ हो गई तो -60 हो गया भाई। ठीक, और नंबर ऑफ पीपल उतनी ही है। अब 3 साल और निकल गए तो 8 लोग, क्या 8 लोग ही हैं अभी भी। तो उन 8 पीपल का फिर से सबका एज 3 साल बढ़ेगा। सो फिर से +24 हो जाएगा। फिर एक की डेथ हो गई। ठीक है, 6 साल हो गए। कितनी बार ऐसा हुआ था? 3 साल बाद एक की डेथ हुई, उसके 3 साल बाद फिर से डेथ हो गई, 2 ही बार ऐसा हुआ है, राइट। तो अब, लेकिन ये आप देखो, ये 10 साल पुरानी बात थी और अभी तक हमारे पास 3 + 3 6 साल ही बीते हैं। तो आपको अगर आज की एज चाहिए तो मुझे 4 years की और बात करनी है। तो अभी जो 8 फैमिली मेंबर थे, उनका सबका एज 4 4 साल बढ़ जाएगा, तो +32 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बेसिकली कितना आ जाएगा आपके पास? 231 प्लस में हो जाएगा 60, सॉरी 80, है ना, और माइनस में हो जाएगा 120। बेसिकली -40 हो गया ये। -40 करेंगे तो 191 आएगा। 191/8 करेंगे तो इट विल गिव यू क्लोजर टू 24 years। ऑप्शन 5। ये तो हो गया लंबा अप्रोच। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे? 10 years अगो 231 टोटल है। इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ पीपल चेंज नहीं हो रहा है, राइट। वो 8 के 8 ही हैं। तो अगर मुझे आज की बात करनी है तो क्या हुआ होगा? देखो कि 8 साल से अभी तक सबका एज 10 10 साल बढ़ गया होगा। सपोज वो डेथ नहीं होती, तो नंबर ऑफ पीपल तब भी सेम रहते। उस केस में आपका क्या होता? उस केस में आपका सबका एज 10 years से बढ़ जाता तो +80 हो जाता। अब क्योंकि डेथ हो गई है 60 और 60 की, तो उसमें -120 हो जाएगा। आई मीन इस पॉइंट पे तो आप सीधे आ सकते थे। तो सीधे सीधे आप 191 पे पहुंच सकते हो। अरे ना लॉजिक। और क्योंकि देखो -60 जब आप कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है वो तो 0 है ना स्टार्टिंग में। तो वो जो चला बंदा जिसकी डेथ हो गई, उसकी जगह पे वो चाइल्ड काउंटिंग कर रहा है, एक तरह से आप सही समझो। काउंटिंग, एज को छोड़ो, काउंटिंग की बात करते हैं, है ना, कि भाई 10 मिनट पहले इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की और हर मिनट में एक एक काउंट कर रहे हैं ना। तो अभी क्या होता है कि किसी ने और दो मेंबर, मतलब एक मेंबर जो 3 काउंटिंग के बाद उसने काउंटिंग करनी बंद कर दी और एक चाइल्ड ने स्टार्ट कर दी। अब बात वही होगी ना कि वो उसने 60 तक उसकी काउंटिंग अगर हो गई और वो कहता अब और नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक चाइल्ड स्टार्ट हो गया साथ में, तो उसकी जगह उसने ले ली। तो मतलब पॉइंट ये है कि इस 80 पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो पहले भी +80 होता, अभी भी +80 ही होगा काउंटिंग के हिसाब से। क्लियर है लॉजिक? ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो 7 का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी in rupees per kilogram is 100 plus 0.1 n. On the nth day of 2007, n is equal to 1 to 100 and then remains constant. ये क्या बोल रहा है कि
प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी जो है वो nth डे पर इतना है, फर्स्ट डे पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.1 इंटू 1, सेकेंड डे पर 100 प्लस 0.2 0.1 इंटू 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे 100 डेज तक चलता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो 100th डे पर इसका कॉस्ट क्या होगा 100 प्लस 0.1 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 110, और इसके बाद ये फिक्स हो गया और कहीं नहीं जा रहा। ऑन द अदर हैंड प्राइस ऑफ OTT इज 89 प्लस 0.15 एन ऑन द nth डे, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है 365 डेज तक। ये बोल रहा है किस डेट पर इन दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। तो भाई एक बात करते हैं कि आप दो पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, या तो इस 100 से पहले ऐसा हो गया होता तो फिर मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज 100 से ज्यादा हैं तो आई यूज 110। अब आप ये देखो कि जितने भी ऑप्शन है, मिनिमम ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल तक 100 दिन तो हो ही चुके हैं ना। मतलब बात जो है, सॉरी 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल तक 100 दिन तो बनी हो ही चुके हैं आपके। इसका मतलब उसके पहले की बात तो नहीं हो रही। सो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस नाउ, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन 110 कि कब ये 110 हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 89 प्लस 0.15 एन 110 कब बनेगा, दैट्स इट। सो एन कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 21 अपॉन 11 और 10 21, ठीक है 0.15। क्लियर, ये कितना आता है 2100 अपॉन 15, 140 आ जाएगा भाई। 140th डे पर सेम हो जाएगा। अभी काउंट करते हैं, जनवरी के 31, फरवरी का 7 है तो लीप ईयर नहीं होगा तो 28, ये भी ध्यान रखना था राइट, कैलेंडर भी मिक्स था यहाँ पर। और मार्च का 31 एंड अभी तक 100 हो गया 140, अप्रैल का 30। तो यहाँ तक अगर आप ऐड करो तो ये आता है 03333 120, 120 और 140 चाहिए तो प्लस 20 और करना पड़ेगा। प्लस 20 करेंगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, मई में पहुँच जाओगे, है ना 20th मई। करेक्ट है, 4 क्वेश्चन डन। 5वें पे आते हैं। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था भाई। a बाई बी आपको 1/3 दिया हुआ है, b बाई सी दिया हुआ है, a बाई बी इज 1/3, b बाई सी इज 2, c बाई डी इज 1/2, d बाई e is 3, e बाई f is 1/4। निकालना क्या है, a b c upon d e f। Can we write this as a upon d into b upon e into c upon f? Now when you multiply this, this and this, पहले तीनों को और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा a बाई डी। कैन आई से कि a बाई डी की वैल्यू इज नथिंग बट फर्स्ट 3 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, सॉरी मल्टीप्लाई। ऐसे ही b बाई e कैसे आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस, उससे c एंड d विल बी कैंसिल्ड आउट, b अपॉन e आ जाएगा। तो b अपॉन e क्या मिल जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ का प्रोडक्ट, 2 इंटू 1/2 इंटू 3, एंड सिमिलरली c अपॉन f मिल जाएगा लास्ट 3 का, 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, दैट्स इट। सॉल्व कर लो इसको, इसे की कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 3/8 एंड दैट्स योर आंसर। ऐसा नहीं करना था कि आप सबको एक कांस्टेंट में लेके जाओ कि मान लो ये बराबर k है तो c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकालो, फिर e का वैल्यू सॉरी, देन d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकालो एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। उतना टेंशन की जरूरत ही नहीं थी इफ यू फोकस ऑन द बेसिक्स। क्लियर है, नेक्स्ट करें। देखो सारे क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस के ही हो रहे हैं राइट, इसमें कुछ रूल टफ नहीं लग रहा है। If x equal to minus 0.5, then which of the following has the smallest value? One of the simplest question that came in CAT.
ठीक है, हाउ, x इज नेगेटिव नंबर राइट, सो 2 की पावर -1/0.5 करोगे, एनी पावर ऑफ 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो ये नंबर पॉजिटिव है. दिस गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर, दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर 2 की पावर को. और यहाँ पे बिकॉज -x हो गया है, सो इट्स एक्चुअली 1/0.5 की पावर हाफ, विच इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर. तो एक टर्म को छोड़ के बाकी सब तो पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट वैल्यू इसी की होगी. नीड नॉट टू चेक द एक्चुअल वैल्यूज. क्लियर? ऐसे भी होता है देखो कैट के अंदर. प्रॉब्लम बस वही होती है कि हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है इसको लेके सॉल्व करना शुरू कर दिया, एंड देन विल वेस्ट योर आवर टाइम. वो अलग बात है, हाँ दो ऑप्शन अगर नेगेटिव हो जाते तो ऑब्वियसली यू नीड टू चेक, बट उस केस में उन दोनों को ही चेक करना पड़ता है ना इफेक्टिवली. और सारे पॉजिटिव होते तो फिर करते ही बैठ के, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. चलिए जी 7th पे आते हैं. 7th इज अगेन एन इजी क्वेश्चन. कंसिडर अ सीक्वेंस वेयर द nth टर्म, आई होप सब लोग पॉज करके ट्राई कर रहे हैं राइट, बार बार नहीं बोलूंगा. nth टर्म tn is equal to n upon n plus 2. ठीक है भाई, where n is equal to 1 2 3 4 and so on so forth. Find the value of t3 t4 t5 से लेकर t53. सिंपली वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं करना है. t3 कितना होगा, t3 हो जाएगा आपका n इक्वल टू 3 डाल देंगे, 3/5. 4 डालेंगे तो 4/6, देन 5/7 इंटू 6/8 इंटू 7/9. चलते चलते लास्ट में आप पहुंचोगे 53 पे, तो 53/55. और उसके पहले क्या आएगा 52/54, और उसके पहले 51/53. राइट, ऐसे चल रहा होगा. अब देखो कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, एक टर्म छोड़ के कैंसिल हो रहा है. ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये इससे हो रहा है, तो ये 52 इधर से हो गया होगा, 51 इधर से हो गया होगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 and 4, एंड डिनोमिनेटर में वी आर लेफ्ट विथ 54 इंटू 55. अब सॉल्व कर लो इसको, इसमें तो कुछ है नहीं है. ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9. सो 2/495 आपका आंसर. इजी. चलिए चलते हैं आगे. अच्छा, अब ये दिखने में लगता है ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कौन 12 की पावर 1/12 निकालेगा, बट लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन राइट. कैसे ऑप्शन कैसे हेल्प करते हैं, देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है. एक बार बताओ, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर की पावर 1/4 करोगे तो 2 की पावर 1/2 ही आएगा ना, विच इज नथिंग बट दिस ओनली. तो मतलब ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज दीज टू हैव सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता. ये लार्जेस्ट तो एक ही होगा ना, और दोनों सेम है तो दो आंसर तो होंगे नहीं, मतलब ये दोनों तो वैसे ही आउट है. और अभी क्यूब रूट ऑफ 3, और ये 6th रूट ऑफ 6, और ये 12th रूट ऑफ 12, डेफिनेटली ये दोनों छोटे होने वाले हैं इससे, एंड दैट्स योर आंसर. गॉट इट. कितना ही इजी बन गया क्वेश्चन. लॉजिक भी बता देता हूँ है ना, अभी आगे पढ़ेंगे भी, बस ठीक है. इसमें ऐसे करना होता है आपको कि 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, 4 की पावर 1/4 है, 6 की पावर 1/6 एंड 12 की पावर 1/12. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पावर फ्रैक्शन में है. अगर ये इंटीजर में होती तो टेंशन नहीं थी. तो इस काम करते हैं ना, इसको इंटीजर बना लेते हैं. अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कंपेयर कर सकता हूँ. मैं ए की पावर 6 और बी की पावर 6 भी कंपेयर कर सकता हूँ. मैं ए की पावर 12 और बी की पावर 12 भी सिर्फ 12 कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ. भाई अगर ये छोटा होगा तो ए भी छोटा होगा बी से, बिकॉज ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर है. यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव है इसलिए बात चल रही है ऐसा, अदरवाइज जरूरी नहीं था. तो द पॉइंट इज कि अगर मुझे पावर को
इंटीजर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन से हटाना है, सॉरी इंटीजर चाहिए, तो ये जब सबके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो 2, 3, 4, 6 एंड 12 आ रहा है। तो अगर इन सब का एलसीएम में ले लूँ विच इज़ 12 ओनली, मतलब अगर मैं सबकी पावर 12 कर दूँ तो क्या होगा, 2 की पावर 1/2 × 12 हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 1/3 × 12 इज 4 हो जाएगा, ये 4 क्यूब हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 की पावर 1 हो जाएगी। अगेन अब तो सिंपल ही आपका 64 हो गया, दिस इज 81, this is 64, this is 36, and this is 12. So clearly the largest one is 3 की पावर 1/3. ये तो हो गया लॉजिक, बट क्वेश्चन हम बिना लॉजिक के भी कर लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। Sum of 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. 4 consecutive 2-digit odd नंबर हैं, ठीक है, उनका सम किया, डिवाइड बाय 10 किया, परफेक्ट स्क्वायर आता है। Which of the following can possibly be one of these 4 numbers? Okay, again use the options. Okay, अच्छा थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेते हैं चाहो तो। एक बात सोचो, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 10 से डिविजिबल है, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 10 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यूनिट प्लेस अगर मैं ध्यान दूं तो यूनिट प्लेस क्या क्या होती है, 1 होगी, फिर 3 होगी, ऑड नंबर है ना, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 7 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो इनमें से कौन से 4 कॉन्जिक्यूटिव लेने पर यूनिट प्लेस 0 बन जाती है, राइट। क्लियरली आप देखोगे तो ये बनता है 7 9 1 और 3 को ऐड करो, 0 बन जाएगा आपका यूनिट प्लेस, है ना, 20 आ जाता है ये। अभी मैं टेंस प्लेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिंपली देख रहा हूँ यूनिट प्लेस तो 0 आएगी, वो इसी केस में आ सकती है और कोई चांस नहीं है। मतलब नंबर कैसे हो गए, 17 19 21 23, जैसे ये हो गया है ना, 37 39 41 43 ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे देखते हैं। सो 20 है तो पक्का ही आउट है, क्लियर। अब अगर मैं 21 की बात कर रहा हूँ तो 21 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज 21, सो नंबर क्या हो जाएंगे, 21 23 20 एंड 19, इन चारों को ऐड करो तो बनता है 80। अब 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आउट हो गया। 41 अगर मैं ले रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग 41 43 40 एंड 39, तो इनका सम आएगा 160, डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आएगा 16, परफेक्ट स्क्वायर है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज माई आंसर। ऐसे आगे आप चेक करोगे तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, यहाँ 240 बनेगा, 24 आएगा, यहाँ 28 आएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, इजी था। तो ये पॉइंट समझना पहले जरूरी था कि जैसे मैं 21 ले रहा हूँ तो मैं कौन से 4 नंबर की बात करूँ, अदरवाइज तो बहुत केस बनाओगे आप, राइट, कि 21 पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है उनमें से, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए था पहले कि हाँ वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ नंबर जिसमें यूनिट प्लेस 7 9 1 और 3 हो, 5 नहीं हो सकती, अदरवाइज सम करने पर यूनिट प्लेस 0 नहीं आएगी गारंटी से। ऑलराइट जी, चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन तो सबसे आसान था, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, बट या एक्चुअली आसान था इफ यू नो द concept of prime numbers, right? The number of employees in Obelix Manher Company is a prime number and is less than 300. The ratio of number of employees who are graduate and above to that of employees who are not can possibly be. Sorry.
कुल मिला के कहना ये चाह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्राइम नंबर है लेस देन 300। तो ग्रेजुएट एंड अबव एंड हु आर नॉट, मतलब दो क्वांटिटी है बेसिकली, आप चाहो मेल फीमेल बोल लो कि मेल और फीमेल का रेशो क्या हो सकता है, कैन पॉसिबली बी। तो एक बात बताओ, अगर ए रेशो बी है, ठीक है, तो ए प्लस मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो ए प्लस बी का तो मल्टीपल होगा ही ना। अब इसमें ये बोला है कि टोटल जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो इस केस में तो यही पॉसिबल है कि ए प्लस बी ही प्राइम नंबर हो। आपको बस ऐड करना है एंड यू नीड टू चेक कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 189। तो ये तो 11 का मल्टीपल है, नहीं सॉरी 11 का नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, 189 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है ना, 9 × 21। तो ये तो प्राइम नहीं है, तो रूल्ड आउट। 187 ये 11 का मल्टीपल है, 11 × 17, तो ये भी आउट हो गया। ये बनेगा 221, ये 13 × 17 है, तो ये भी आउट है। ये बनेगा 183, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी आउट है। और ये बनेगा आपका 181। अब यही बचा, ये तो यही प्राइम नंबर होगा, वैसे भी किसी का मल्टीपल नहीं है, इट्स अ प्राइम नंबर। और वही मुझे चाहिए था कि नंबर प्राइम होना चाहिए, ऑप्शन 5 इज आंसर। ठीक है। ऑब्लिक्स मैन हेयर कंपनी एक कार्टून, सॉरी कार्टून नहीं, कार्टून से पहले कॉमिक्स, एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स करके एक कॉमिक्स हुआ करती थी काफ़ी पहले। एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर, कार्टून मूवी भी बनी है, तो वो ऑब्लिक्स था इसमें। ऑब्लिक्स जैसे हमारे भीम थे, ऐसे ऑब्लिक्स थे जैसे भीम को वो जो दवाई खा के वो एकदम मतलब खूब बल आ गया था ना, खूब सारा पावर आ गई थी, ऐसे ही ऑब्लिक्स के साथ हुआ था। मैजिक पोशन खा के उसको परमानेंटली वो सुपर पावरफुल बन गया था हमेशा के लिए। इट्स अ गुड कॉमिक्स टू रीड एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये कैट के जो मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनमें से एक था, नॉट इजी, ओके। और कैट जब सिनेरियो की बात करते हो तब तो वैसे भी टफ था, काफी लोग इसको गलत मार्क करके आए थे, एंड ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। saying 4 points A B C D lie on a straight line in the XY plane। 4 पॉइंट हैं A B C एंड D, और ए बी बराबर सी बी बराबर डी डी सी डी। इसको ट्राई करो पक्का पॉज करके, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। नाउ एन आंट एट ए, यहाँ पर एक आंट है, wants to reach a sugar particle at D, उसको ए से डी पे जाना है, बट क्या प्रॉब्लम है, देर आर इंसेक्ट रेपलेंट्स कैप्ट एट पॉइंट बी एंड सी। हिट रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। द आंट वुड नॉट गो विद इन 1 मीटर ऑफ एनी इंसेक्ट रेपलेंट, मतलब इसकी रेंज 1 मीटर की होगी। अभी कोई भी आंट, कोई भी रेपलेंट अगर यहाँ रखा है और उसकी एक रेंज अगर 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर रेंज हुई ना उसकी, राइट। तो इस एरिया में वो नहीं आ सकता आंट। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स द आंट मस्ट ट्रेवर्स टू रीच टू द शुगर पार्टिकल। अब देखते हैं,
इस पे जो बी रखा है इसकी रेंज भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये भी है और 1 मीटर ये भी है, तो बेसिकली डायमीटर की तरह काम करेगा ए बी ए सी। मतलब अगर मैं बी को सेंटर लेकर एक सर्किल ड्रॉ करूंगा यूजिंग रेडियस एज 1, तो वो ए और सी से पास होता हुआ जाएगा ऐसे। ठीक सा नहीं बना तो टेंशन मत लेना। ऐसे ही जो सी पे रखा होगा वो बी और डी से पास होता हुआ जाएगा, तो वो कुछ ऐसा जा रहा होगा। उसकी रेंज ऐसी होगी मतलब। तो इस बाउंड्री के अंदर वो आंट नहीं आ सकती है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेगा, तो ऑब्वियसली बाउंड्री पे काम करेंगे, ऐसे जाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए, है ना। अब अगर आप बाउंड्री पे बात करो तो यहां से यहां गया और यहां जाके और फिर यहां चला गया, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब ये गलती काफी लोगों ने की है ना। क्यों? क्योंकि वो माइंड में एक बार बैठ जाता है ना कि भाई अच्छा बाउंड्री पे तो जाना है, तो बाउंड्री पे ही चलते रहते हो। बट हुआ ये, अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मुझे बताओ इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे सीधे जाना बेटर नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होती है ना। सो आइडली इस पॉइंट के बाद स्ट्रेट जाना था एंड फिर अगेन ऑन द बाउंड्री। ये पॉइंट ऑब्वियसली सी के जस्ट ऊपर है ना। वो ड्राइंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट बनेगा सी के ऊपर ही। तो बेसिकली अब क्या हो गया, ये 1/4 सर्किल है, ये भी 1/4 सर्किल है, तो पैरामीटर कितना होता है 2πr। उसका 1/4 करोगे तो क्या आएगा, π/2 ये आएगा और π/2 ये आएगा। और बिकॉज ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस π/2 प्लस π/2 गिव्स यू 1 प्लस पाई। नॉट एन ईजी क्वेश्चन, राइट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सारे ईजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं किया हमने। 2πr तो यार मतलब बचपन से पता होता है नहीं। बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेवल करा दिया उनका आंसर 4/3 आया, 4π/3। और ये दोनों काफी क्लोज ऑप्शन है, डेसिमल का ही डिफरेंस होगा। ठीक है जी, चलिए 12th करते हैं। ये भी काफी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, 2005 है का शायद। काफी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कैट का ये। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर टाइल्स ईच ऑफ साइज 70/30 must be laid horizontally on rectangular floor of size 110:130 such that the tiles do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor. ठीक है, टेढ़ा नहीं लगाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगाना है। No tile should overshoot any edge of the floor. The minimum number of tiles that can be accommodated on the floor is. Give it a try. Pause the video and give it a try. Very good question. Although इसका आंसर गलती से भी सही आ जाता है। नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, मेंसुरेशन क्वेश्चन है ना, कि जो फ्लोर का एरिया है डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, राइट। तो वो 110 इंटू 130 अपॉन 70 इंटू 30 करना था मुझे, लॉजिक से, उस वाले लॉजिक से, राइट। द प्रॉब्लम विद दिस इज क्वेश्चन में जो डायमेंशन है ये आप तभी अप्लाई करते हो जब मोस्टली जो नीचे वाले नंबर्स हैं, मतलब जो साइज ऑफ टाइल है, वो इन दोनों का फैक्टर हो। इन दैट केस क्योंकि ओवरलैप भी नहीं होगा और इनके कोई एरिया छूटेगा भी नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप पूरे फ्लोर पर इस टाइल को नहीं बिछा पाओगे, कुछ ना कुछ जगह तो छूट ही जाएगी ना, क्योंकि काटना नहीं है ना, टाइलें बिछानी है। ओके, और आपको बस इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल लगा पाओ। ओके,
तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं था ये, तो गलत हो गई बात। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, नॉट मेंसुरेशन क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्या करना है। ये आपका 130 और ये है 110। तो अगर मैं 70/30 लगाना है मुझे, तो देखो मोस्टली अगर आप लॉजिकली इस लॉजिक से भी कर रहे हो तो शायद आंसर आपका 5 आ रहा होगा, राइट। तो उसमें अगर मैं 70 इधर रखूं तो आप देखोगे तो ऐसे मेरे 30 इंटू 4 इज 120, तो 120 तक मेरी 4 टाइल तो ऐसे आ जाएंगी। 30 एंड 30, और ये हो जाएगा 70 यहाँ तक, तो आई लेफ्ट विथ 40 यहाँ पर। सो एक टाइल यहाँ भी बिछा सकते हैं, सॉरी, बट ये आपका गलत जवाब है। इस पे मैं मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ, और सोचते हैं। ये 130 है, ये 110 है ना। सो अब अगर मैं सॉरी एक 70 ऐसे बिछाता हूँ, लेट्स से this is 70, this is 30, so I'm left with 60 here, right। अब इस 60 में 30 + 30 60 होता है, तो मैं 2 टाइल वर्टिकल तो लगा सकता हूँ ना। मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इधर 2 वर्टिकल कर दो, तो 30 ये हो जाएगा, और 70 बचेगा, और वहां पर मैं आराम से एक 70 का टाइल लगा सकता हूँ। और यहाँ भी जगह बच रही है, देखो आप, ऐसा नहीं कि ओवरशूट करेंगे, राइट, बिकॉज ये 30 है, ये 70 है, so we are left with 10 centimeter here and 10 here. So you can observe here कि हमारी 1 2 3 4 5 6 tiles we can put. Now if you solve this also ना, ये भी आपको 6 point something देगा। That's why I was telling कि आंसर गलती से भी सही निकाला था लोगों ने, जो उन्होंने ये अप्लाई किया 6 point something आ रहा, तो 6 टाइल तो आ ही जाएंगी, ऐसा सोच के आंसर 6 मार्क कर दिया, तो वो गलती से ठीक हो गया, करेक्ट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो मैं इसको 129 कर दूं, 129/110 कर देता हूँ, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, जबकि ये आपका अभी भी 6 पॉइंट समथिंग देगा, दिस अपॉन दिस। तो मतलब जो लोग वो गलती कर रहे थे, वो आंसर में भी 6 मार्क करते, बट नाउ द आंसर इज 5, बिकॉज आप 5 से ऊपर फिट नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे फिट करना पड़ेगा, ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गॉट इट। चलिए जी, 13th पे आते हैं। 15 क्वेश्चन वी विल डू टोटल। 3 Englishmen and 3 Frenchmen work for the same company. Each of them knows a secret not known to others. 3 इंग्लिशमैन हैं, E1 E2 E3, 3 फ्रेंचमैन हैं। सबके पास एक सीक्रेट है, ओके, और बाकियों को नहीं पता है वो। They need to exchange these secrets over person to person phone calls so that eventually each person knows all the 6 secrets. None of the Frenchmen knows English. किसी फ्रेंचमैन को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ओनली वन इंग्लिशमैन नोज फ्रेंच। मान लो ये वो भाई साहब हैं जिनको फ्रेंच आती है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोन कॉल्स नीडेड फॉर द अबव पर्पसेस, मतलब सबको सबका सीक्रेट पता लग जाए तो कितने कम से कम कॉल्स में बात बन जाएगी, राइट। चलिए अब देखो, इसको फ्रेंच आती है, तो ये किसी भी एक फ्रेंच वाले को कॉल कर सकता है ना, और वो फिर
फ्रेंच में बता देगा उनको, और वो अपने फ्रेंच में आपस में डिस्कस कर लेंगे, है ना, बता देंगे। बट ये कॉल तभी करे ना जब इसको एटलीस्ट अपने दोनों इंग्लिश मैन का तो सीक्रेट पता हो। करेक्ट। तो क्या होगा कि पहला ये कॉल करेगा इसको, ये कॉल करेगा इसको, दो कॉल्स हो गई। और उसके पहले ये भी एक एक कॉल कर चुके होंगे, सो दैट जब ये और ये आपस में बात करें तो एक ही कॉल में 6 के 6 सीक्रेट इन तीनों को पता लग जाए। इंग्लिश वाला अपने तीनों उसको बता देगा और फ्रेंच वाला अपने तीनों उसको बता देगा। तो एक कॉल और हो गई, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स अगर आपको याद हो तो ये 5 का सिंबल होता है ना, ऐसे काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद अब इस E2 को और F2 को सारे सीक्रेट पता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है। तो ये कॉल इसको वापस करेगा सारे सीक्रेट बताने के लिए, इसको भी वापस करेगा, इसको ये वापस करेगा, इसको ये वापस करेगा, तो 4 और हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा 9। प्योर कॉमन सेंस है ना, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया इसके अंदर, पीएनसी का क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक है प्योर। करेक्ट, फेयर आइडिया। कैट में क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट ये है, समझो बात को, है ना, जिसको आप लॉजिकली कर सकते हो, अभी भी आते हैं, है? ओके जी, 14th पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें गलती के चांसेस काफी हो जाते हैं बच्चों के ना, काफी सिली मिस्टेक हुई थी इसके अंदर। सपोज n is a positive integer such that sum of the digits of n is 2 and n lies between 10 की पावर 10 to 10 की पावर 11। 10 की पावर 10 का मतलब हो गया 10 के 1 के आगे 10 जीरो, इससे बड़ा है, तो ये तो पक्का है कि नंबर 11 डिजिट का है। और क्योंकि 10 की पावर 11 से छोटा है तो पक्का 11 डिजिट का नंबर है। तो मुझे 11 डिजिट का नंबर चाहिए। कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट उसका 2 होना चाहिए। तो एक 1 तो ये है ही, एक 1 और ले लेते हैं। नाउ वी हैव 10 प्लेसेस ना, तो उस 1 को मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ ना, और बाकी जगह 0 आ जाएंगे। सो 10 पॉसिबिलिटीज तो ये बनी गई, 1 एट द फर्स्ट प्लेस और दूसरा 1 कहीं भी 10 जगह पे कहीं भी आ सकता है, तो 10 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे। अब इसमें सिली मिस्टेक बच्चों से क्या हुई थी कि आंसर मार्क कर दिया 10, बट एक नंबर 2000 भी तो बन सकता है। ये सिली मिस्टेक काफी स्टूडेंट्स ने किया था, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, चलिए 15th करते हैं। n persons stands on the circumference of a circle at distinct points. Each possible pair of persons not standing next to each other sings a 2-minute song, one pair after another. So ये क्रिसमस कैरल चल रहे हैं, मौका भी है अभी क्रिसमस का ना। टोटल सिंगिंग इज 28 मिनट्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि 2 मिनट का सॉन्ग है और 28 मिनट की सिंगिंग होगी, तो एक तरह से ही कह सकते हैं ना कि 14 सॉन्ग्स हुए। तो 14 पेयर्स बनने चाहिए, है ना, मतलब, लेकिन जो साथ में खड़ा हुआ है उसके साथ पेयर नहीं बनाना उसको। करेक्ट, एन की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन चलते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। 5 लेते हैं, चलो मान लीजिए 5 लोग थे। सो ए बी सी डी और ई, ये आपस में कितने पेयर्स बना सकते हैं? ए का पेयर बन जाएगा सी के साथ, ए का बन जाएगा डी के साथ, है ना, साथ में जो खड़ा उसे नहीं बनाना है। बी का बन जाएगा डी के साथ और बी का बन जाएगा ई के साथ, और ई सी का बन जाएगा ई के साथ, बाकी बन ही चुके हैं। तो यहाँ तो 5 ही पेयर हुए,
जबकि मुझे 14 चाहिए, तो 5 तो आंसर नहीं है। 7 लेके देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ एन जी। पहले ए का पेयर बनाते हैं, ए सी ए डी ए ई ए एफ, 4। बी के साथ सी का नहीं बनेगा, बी डी बी ई बी एफ बी जी, ये भी 4 हो गया। सी का बनेगा ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, ए से ऑलरेडी बन चुका है तो 3 ही रह गए। डी का एफ के साथ बनेगा और जी के साथ बनेगा, बाकी से बन चुका है, 2 रह गए। और ई का जी के साथ बनेगा, बाकी बन चुके हैं, तो 1 रह गया। दिस गिव्स यू 8 3 11 और 3 14। बात बन गई, दैट्स योर आंसर। प्योर लॉजिक। वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं इसको, राइट, बट उसके बिना भी देखो हम लॉजिक से भी सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। सो इवन इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स, राइट, यू कैन स्टिल डू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? वैसे ये पीएनसी का क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स की हम बात कर रहे थे। आप देखो तो ये जो भी पॉलीगन बनेगा 7 साइड का, उसके डायगोनल्स निकाले हैं इन अ वे हमने, तो वो पीएनसी में पढ़ेंगे हम, राइट, नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला केस। करेक्ट है जी। चलिए 15 क्वेश्चन वी डिड टुडे, ऑलराइट। तो यू गेट बेसिक आइडिया अभी ना कि कैसे क्वेश्चन, अभी तो हमने ओल्ड पैटर्न पे, मतलब ओल्ड कैट क्वेश्चन लिए हैं, दैट इज ओके, बट देखो 9 के बाद 16 तक तो पेपर वैसे भी आउट नहीं हुआ था, तो उसके बारे में कुछ भी कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद के अवेलेबल हैं डेफिनेटली, तो उसमें भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। वो अभी मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं सच, क्योंकि ये तो मेरा पहले से कलेक्शन बना हुआ था, सो आई थॉट आई शुड टेक इट। ठीक है जी, चलिए, सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक्स, ऑलराइट। चलिए, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।